Hello friends, do you know what's going on in Delhi International School, Dwarka? Yes, it is. One seminar on social media. What is the impact of social media in daily life? Very interesting subject. You all are welcome to be a part of this seminar, and I hope you will definitely enjoy each and every moment of this seminar. I'm sure a lot of people with a very big profile will be the main speaker in this seminar. And thanks to DIS management and especially Principal Ma'am Rasmi Malik Ma'am, I'm really thankful all the staff members who cooperated us to organize such a big, very innovative seminar in their school. Good morning, sir. My name is Shruti Kumar. I'm in 10th standard, and this is our school, Delhi International School. Today in our school, we have the workshop with the collaboration with Dwarka Parichay on the topic social media. Good morning everyone. My name is Rashmi Malik and I'm Principal Delhi International School, Sector 23 Dwarka. Today we are having a workshop by Creative World and Dwarka Parichay people. The topic of the workshop is usage of social media in daily life. A very relevant topic for today's generation, no doubt about this. We in our school understood the value of the social media platforms, and we opened our own Facebook page. The school Facebook page is an interactive page wherein all the parents, all the students post their queries and we sort it out there and then. Similarly, for the exchanging of the academic information, we have class WhatsApp groups with us wherein the teachers, the class teacher is the admin and all the students are connected, or maybe their parents are connected to that group. We share our assignments, we share homework, classwork, we share issues which are inside the classroom, we sort it out there and then. We also have a teachers group where admin is obviously myself, and we interact on those teachers group, give important information to them, and the rules and regulations are set right in the beginning of the formation of the group. So everybody uses the group for the official purpose only. In fact, we have a group for the management also. The management wherein all the policy, all the agendas, all the meeting schedules are posted regularly on that particular WhatsApp group. Facebook and WhatsApp and all other social media are very, very useful. In fact, if you use it intelligently, if you use it positively. Otherwise, yes, they are a great way of wasting the time as well. So happy doing social media. Thank you so much. So this is Sandhya Bhanjari and I'm a student of Marva Studio. And so आप सभी को जैसे पता है यहाँ पर social impact of social media इस पे डिबेट हम यहाँ पर करने वाले हैं. So are you guys ready with your words? Yes. I'm talking about students. You guys are ready, I know.
Alright, so first of all, I invited all the dignitaries and the principal ma'am. Please come on the stage for love line. सर्वकारेषु सर्वदा थैंक यू। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम के जो होस्ट हैं स्कूल प्रिंसिपल मैम रश्मि मैम, जो खुद अपने आप में सीरियसली डूइंग एक्सीलेंट इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मीडिया, एंड आई नो लॉट ऑफ स्टाफ मेंबर्स आर आल्सो सिटिंग हियर फॉर हिज स्कूल फ्रॉम हर स्कूल. So first of all, I should call principal ma'am to talk upon social media. वो हमारा जो सेशन है 5 मिनट का, सब सोशल मीडिया के इम्पैक्ट, how useful social media in our day-to-day life. So ma'am, first of all, please, as a host, I would request you kindly. From daily life. I believe my teachers know it very well. Yeah. So you've been using WhatsApp now for the past how many years? Since the time WhatsApp began, right? So what is the usage of the social media when you use it on WhatsApp? Like what is the use of WhatsApp for you all? Can anybody elaborate? See, I'm not going to give a monologue. Very simple. Because when you talk about social media, it's actually about the groups, about the society. So we need to talk about the usage. Obviously, as any other technology, usage can be positive, usage can be negative. Negative use, yes, it helps in bullying. It helps in trashing the other person's ego, trashing the other person's image. Very, very easy to do that on social media because हम सबको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे और लोग से पढ़ लेते हैं हमारे बारे में कुछ नेगेटिव तो हमारी वैसे ही ईगो ट्रैश हो जाती है. So that's something very, very negative about the social media. But if you check about your image, I mean, if the students are, I can see a lot of students here who are into the profession with me. Now, please understand your Facebook page. Okay, the link to your Facebook page. And what are they going to do? This is something which I am doing. If I want to know about any of my teachers, see your posts, the kind of post that you are posting on your Facebook page gives me an idea what kind of person you are. Alright? And this is an important tool for every organization also to understand about, what a person is like. So be very, very careful for your digital footprints. You have to be conscious what you're posting on your page if you want to have an image in your society. Sometimes what happens is we casually post something and suddenly some person who wanted to work with us professionally reads that and sees in social media. As far as our teachers are concerned, our management is concerned, our students are concerned, we are using WhatsApp groups. We are using WhatsApp groups to share the information which is related to the institution. For students, obviously, it is the assignments, the homework, the classworks, and other messages. And for teachers, it is about like the duty charts and duty lists. All those things are shared so that everybody knows what is happening in the school. For management, we have our meeting agendas and policy change or anything immediately communicated to each other. Because we all carry our phone like our body part nowadays. Very careful of usage of social media. Because if used negatively, it can trash somebody's completely. Alright? So that's what I want to tell you. I don't have to give you any gyan how to use WhatsApp or how to use Facebook. In fact, I would also like to mention our parents. In our school, the parents are also communicating with us on Facebook. And I'm very happy to tell you that, hey, ma'am, I'm not able to concentrate on my study. He's doing MBBS. So he said, I'm not able to concentrate on my study on Facebook. So he said, hey ma'am, I kind of like a girl and I keep thinking about her. So I told her, ठीक है, अभी आप सोच लो उसके बारे में, सोचते रहो और पढ़ाई भूल जाओ, ठीक है? और जब आप फेल हो जाओगे ना, तो वो लड़की किसी
सक्सेसफुल लड़के साथ निकल जाएगी और आप बैठे रहना। So you have this is this lady, she can help me out. So positive use is there and negative as well. I think the flowers and the whole the building is wonderful, I must say, and I think I must congratulate the principal ma'am and all the teachers here. It has been a very wonderful experience for me till now. Now talking about the seminar today, which is entitled "The Impact of Social Media in Our Daily Life." Of course, everybody knows in our daily life there are many aspects. I, since being a teacher again, of course, in a college, I will kind of relate it with what interaction I have with my students. Now, firstly, I must say you are all very lucky. I think all the students here, they are lucky that you are right now born in these times where you have social media. When we were studying or when we were, young as you all are, at that time we never had this platform to communicate. For us, it was okay, but if you had to be like us, like what we had, the way we used to conduct ourselves and all that time, it would be difficult for all of you. So, social media like WhatsApp and Facebook, I personally feel is very, very important. If, again, the usage, as Principal Ma'am very correctly said, if the usage is a responsible usage, you are very careful, and you are aware of the negative aspects of it. So, otherwise, I think if you are yourself very, very sure that, okay, as Ma'am said, you should not be posting a few things or any other that would affect your image as an individual in a society. And you are basically using it for your own, you can say, education purposes or any other thing, it's absolutely fine. And in our college also, I see students, I'm sure some of you will be now maybe in 11, 12, and you're all now eager to join college. There you also see that because of the social media nowadays, everything in an instant reaches people. Now the important thing is that it's not even restricted to our college or our university, like any university within India, even abroad. It's like, you all know, we can immediately connect with anybody outside. And so... पहले हमें किसी भी घटना के लिए पत्रकारों की तरफ देखना पड़ता था, मीडिया की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन आज हर आदमी, आप जितने भी लोग बैठे हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हर आदमी पत्रकार है। कहीं पर कोई घटना हुई और आपने तुरंत सोशल मीडिया पर डाला और मीडिया से पहले सोशल मीडिया कार्रवाई करा दी आज के डेट में। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में जितने आंदोलन हुए हैं हाल के दिनों में, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया दैनिक जीवन में हमें किस तरह से प्रभावित कर रही है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने बताया था कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव हैं। तो जो लोग सृजनात्मक सोच वाले लोग हैं, उनके लिए ये सकारात्मक प्रभाव देता है, और जो नकारात्मक सोच वाले हैं उनके लिए नकारात्मक माध्यम है। जो सकारात्मक सोच वाले लोग हैं उनके लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए। लेकिन जो विध्वंसक विचारधारा वाले लोग हैं उनके हाथ में सोशल मीडिया ठीक उसी तरह से है जैसे बंदर के हाथ में माचिस दे दी जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे देश में मुजफ्फरनगर की घटना याद दिलाना चाहूंगा, वहां पर दंगे हुए, तो दंगों को फैलाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। एक पक्ष दुष्प्रचार करता कि हमारे इतने आदमियों को मार दिया गया, दूसरा पक्ष उसके जवाब में देता कि हमारे इतने आदमियों को मार दिया गया। इस तरह से सोशल मीडिया के जरिए ये हिंसा फैलती गई और बहुत बड़ा दंगा हो गया, दोनों तरफ के लोग मारे गए। लेकिन ये नहीं है कि सोशल मीडिया सिर्फ नकारात्मक ही देता है, सोशल मीडिया बहुत एक अच्छा माध्यम है, हम इसे अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव भी डालता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि पत्रकार होने के साथ मैं और भी कई विधाओं में महारत रखता हूँ, जैसे कि मैं कवि हूँ, लेखक हूँ, अभिनेता हूँ। लेकिन जब तक मैंने सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया तब तक मेरे ऑफिस में भी लोग नहीं जानते थे कि मैं लेखक भी हूँ, कवि भी हूँ, अभिनेता भी हूँ। 2011 के आसपास में फेसबुक पर आया
उससे पहले मैं फेसबुक पर नहीं था। और जब 2011 से लेकर अब तक इस सोशल मीडिया ने मुझे देश भर में प्रसिद्धि दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और डोगरा साहब का मैं आभारी हूँ। डोगरा साहब से भी मेरी सोशल मीडिया पर ही मुलाकात हुई, फेसबुक के जरिए। और डोगरा साहब के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ये भी बहुत बड़ी विधा में माहिर है और पत्रकार भी है, मीडिया मैन भी है और डायरेक्टर भी है, फोटोग्राफी भी शौक रखते हैं और कवि भी है। तो इन्होंने जैसे ही मेरे से कहा कि नेत्रपाल जी आपको बोलना है, मैंने तुरंत हाँ कह दी कि डोगरा जी के कार्यक्रम में मैं अवश्य जाऊंगा। अब फिर घूम फिर कर हम सोशल मीडिया पर ही आ जाते हैं। अभी डोगरा साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया के यूज में आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। अभी मैं 2 महीने पहले की एक बात बताता हूँ। एक लड़की से मुझे प्रेम था, तो ये 2 महीने चला, फोन पर बात होती थी, उसके घर भी मैं जाता था। अचानक से उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे इंसल्ट कर दी। मैंने जब भी उससे बात करने की कोशिश की तो वो जवाब ही नहीं देती थी। उस घटना के बाद से मेरे अंदर एक कॉम्प्लेक्शन पैदा हो गया कि ये भावना पैदा हो गई कि आखिर मुझमें क्या कमी थी। और मेरे मन में ये इच्छा भी थी कि मुझे कम से कम पता तो लगे कि किस वजह से उसने ऐसा किया। अभी 2 महीने पहले, उस घटना के 14 साल बाद 2 महीने पहले उस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है मुझे। उसका सरनेम चेंज हो चुका था, उसकी शादी हो चुकी थी। अब सबसे पहले तो वैसी पसोपेश में था फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। मेरे मन में ये था कि इसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, अब मैं इसे फ्रेंड बनूं या नहीं बनूं। 1-2 दिन सोचकर मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। फेसबुक पर हम फ्रेंड बने। फिर मैंने उससे पूछ लिया कि भाई सबसे पहले तो अब ये बताओ कि क्या वजह थी, तुमने क्यों मेरी इंसल्ट की। तो उसने मुझे बताया कि मैंने इसलिए आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी यही बताने के लिए। मेरे भाई क्योंकि आपके ऑफिस में काम करते थे और उन्हें लगा कि अगर मेरी शादी आपसे होगी तो मेरे भाई की बदनामी होगी, आप रिश्ते में बड़े हो जाएंगे। उन्होंने घर में दबाव बनाया और घर वालों के दबाव में मुझे आपको रिजेक्ट करने का फैसला लेना पड़ा। कोई कमी नहीं थी। एक और इफेक्ट पर आते हैं, एक रिपोर्ट लेकर आया हूँ। ये हमने चलाई थी, ये हिंदी में मैं लेकर आया हूँ। ये चिप मेकर कंपनी है एक इंटेल, उसने अभी हाल में एक स्टडी कराई, थ्रीज कंपनी लवर्स, फ्रेंड्स एंड डिवाइसेस। तो इस अध्ययन की रिपोर्ट बताती है कि 60% लोग दिन के दौरान अपने फोन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। 60% लोग दिन के दौरान अपने फोन पर ज्यादा ध्यान देते हैं और इस वजह से दोस्ती में खटास आती है, प्रेम में खटास आती है। पति पत्नी के संबंधों में भी आजकल सोशल मीडिया एक नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। पति हमेशा चैटिंग पर लगा रहता है या पत्नी चैटिंग पर लगी रहती है, तो इससे दूसरे साथी को परेशानी होती है, जीवन साथी को। अभी परसों में अखबारों में एक खबर छपी थी कि पति की चैट बुक की लत से तंग, पति की चैट बुक की लत से तंग होकर पत्नी पहुंची थाने। बट इट इज आल्सो विद द पॉजिटिव थिंग्स। पॉजिटिव थिंग्स ट्विटर पर देखो, आज हमने एक ट्वीट किया और रेल मंत्री सुरेश प्रभु तुरंत कार्रवाई करते। ट्रेन में कोई महिला आ रही थी, उसके बच्चे के लिए दूध नहीं मिल रहा था, महिला ने ट्वीट किया और सुरेश प्रभु जी तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने रेल अधिकारी को फोन किया और अगले स्टेशन पर अधिकारी बच्चे के लिए दूध लेकर पहुंच गए। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम पॉजिटिव चीजें कर सकते हैं, एक बहुत सृजनात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाएगा। थैंक यू। सम्मान की बात है। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम 3rd year student of Asian School of Media Studies, Marva Studios. I am a member of Newspaper Association of India. I am also a member of an NGO, Center for Social Development and Research Foundation. I am currently associate with Dwarka Parichaya. अब मैं थोड़ा हिंदी में आ जाता हूँ, बिकॉज पत्रकार होने के हिसाब से मुझे हिंदी में भी बात करनी चाहिए। द्वारका परिचय बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। मैं 5 फरवरी को द्वारका परिचय से जुड़ा। जिस कारण मैं जुड़ा एक मिरेकल था, या मेरे लिए बहुत बड़ी एक स्टोरी है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मारवा स्टूडियोज में रेगुलर इवेंट्स होते हैं। एक इवेंट हुआ था फोटो जर्नलिज्म, जिसमें मैं ऐसी महान हस्ती, मेरे लिए तो महान हस्ती ही साबित हुई। मिरेकल था या क्या था, मैं एसएस डोगरा जी से मिला। सर से मिलने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली।
कि आज वो दिन है कि पहले मैं सामने बैठ के लोगों को सुनता था, आज ये दिन है कि मैं स्टेज पे हूँ। रिसेंटली मैंने एक बुक भी लिखी, जर्नलिज्म अराउंड अस। बुक के अंदर ये था जो मैंने देखा, मैंने कंपाइल ही करी, टोटली रिसर्च वर्क था कि मीडिया जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले मीडिया कुछ और था, अब कुछ और है। पहले हम जो न्यूज होती थी वो हमें दिखती थी, आजकल जो न्यूज हम देखना चाह रहे हैं हमें वो दिख रहा है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म टोटली 0% हो गया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। ऑनलाइन मीडिया पे मैं अगर आ जाऊँ अब तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज इस टाइप के कि अगर कोई भी न्यूज होती है, कोई भी अगर वायरल हो जाती है और वो अगर फेसबुक पे डाल दी, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं टैग कर दिया उनको, बात लीक हो गई, बाद में पता लगा फेक न्यूज थी। ऑनलाइन जर्नलिज्म के एडवांटेजेस अगर देखें बहुत ज्यादा, जैसे मैम ने भी अभी बताया, रश्मि मैम ने, इनसे मैम से भी मैं मिला, मैं मैम की भी बात बता दूं, मैं फर्स्ट डे डोगरा सर के साथ आया था बात करने के लिए बस इस प्रोग्राम के लिए, और मैं इतना इम्पैक्टफुल, इतना ज्यादा खुश हुआ कि नेक्स्ट टाइम मतलब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस मैम ने खुद ही मुझे, मतलब मैंने बस बोला कि हनी सहगल, देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट मैम। और जहां तक मैंने द्वारका परिसर में रह के 2 महीनों के अंदर इतना जान लिया है कि द्वारका में प्रिंसिपल से मिलना आसान नहीं है, ये बात फैक्ट है। खुद का फेस किया हुआ है, ये बात रियल में फैक्ट है। स्कूल के धक्के खाने पड़े थे, प्रिंसिपल से मिलना फैक्ट नहीं है, लोग गेट से वापस भगा देते हैं। तो इस हिसाब से कोट आया था, शायद द्वारका में बहुत ज्यादा फेमस हो गया कि इट इज इजी टू मीट पीएम मोदी बट इट इज नॉट इजी टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द द्वारका। देखिए अब ये अपनी अपनी परसेप्शन है। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं तो ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने फेस किया है, बट बहुत प्रिंसिपल ऐसी भी है, रश्मि मैम जैसी, छोटा हो या बड़ा हो इंसान को दिल से इज्जत करनी चाहिए। ये नहीं कि ये स्टूडेंट है, ये छोटा है, बल्कि मैं मैम के स्कूल का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैम ने मुझे टोटली रिस्पेक्ट दी क्योंकि प्लेटफॉर्म आया द्वारका परिचय के जरिए, बट कुछ तो मैम ने देखा होगा ना कि लड़के में कुछ तो है। दूसरी बात, एक कोट है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप दिल से करो। सोशल मीडिया ये सब तो एडवांटेज, मीडिया तो खैर मीडिया तो ऑलरेडी चेंज हो ही चुका है, ये तो आप सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कुछ दिल से करना है तो आप एक चीज माइंड में डाल लीजिए, या तो मैं इतिहास बन जाऊंगा या मैं इतिहास बना के रहूंगा। थैंक यू। शर्मा, अगस्त 1981 born। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन श्री भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जन्माष्टमी थी। तो मैं सोचा कि क्यों ना अपना रोल मॉडल श्री कृष्ण भगवान जी को ही बनाया जाए। उन्होंने जो समाज के लिए जो कार्य किए, तो हम भी चाहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करें। तो समाज को जो हम कोई दिशा निर्देश, अच्छी जगह, अच्छा वातावरण दे सकते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह है आदमी का सामाजिक होना। तो सामाजिक होने के लिए आप समाज में कौन सा स्टेशन, कौन सा चैनल, कौन सा प्लेटफॉर्म चुनते हैं वो जरूरी है। तो उसमें मैंने देखा कि समाज में सबसे जो बड़ा परिवर्तन कर सकता है वो कर सकता है एक लीडर। तो मैंने सोचा कि इस लीडरशिप को सीखते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। पूरे देश में भ्रमण करके मैंने देखा आज के दिन कि जिस हिसाब से हमारा ये सोशल मीडिया के ऊपर जो आज का विषय है, कि सोशल मीडिया एक इतना अच्छा माध्यम है एक गांव से शहर को, शहर से सचिवालय से जोड़ने का, जिसे आप एक छोटे से छोटा इंसान, एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला भी, एक पढ़ा लिखा नौजवान भी अपनी सारी बातें शेयर कर सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम जैसे जनरली हम बात करते हैं, 1 to 1 करते हैं, 1 to few करते हैं, पर सोशल मीडिया में हम 1 to 1 भी करते हैं, 1 to few भी करते हैं और others to others भी होती है। तो ये सोशल मीडिया का बड़ा इम्पैक्ट है। सोशल
मीडिया में जैसे फेसबुक है, आज के दिन व्हाट्सएप है, मैसेजेस है, इन लोगों ने हमारे को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का बड़ा इजी है, जिनसे हम अपनी बातें पहुंचा देते हैं। अभी मेरे से पहले एक भाई साहब कह रहे थे कि आज ट्वीट करते हैं तो सुरेश प्रभु जी एक्टिव हो जाते हैं, आज ट्वीट करते हैं तो सुषमा स्वराज जी एक्टिव हो जाती हैं। तो इसके जो पॉजिटिव फैक्टर हैं वो अपनाने चाहिए, इसका जो नेगेटिव फैक्टर है उससे समाज में कम्युनिकेशन करके जो भी हमारी मूलभूत परेशानी। Thank you so much, sir. Mr. Sanjay Mishra, sir, please come on the stage. तुलसीदास जी का लिखा हुआ दोहा चौपाई जो है, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति रूप देखी थी जैसी। तो सोशल मीडिया के बारे में जो हमारी सरकार जी ने कहा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि मेरिट्स और डिमेरिट्स सभी हैं, लेकिन डिपेंड अपॉन यू हाउ टू यूज दिस। जैसे न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी है, या हमारे जो यूथ, जो इंटरप्रेन्योर, आप सभी जो यंग स्टूडेंट हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि भी डे टू लाइफ में इस सोशल मीडिया से लोगों को The impact of social media nowadays is of course very important in every aspect, and I'll be more specific because I'm a professor, assistant professor in a college, in a Delhi University college, and what I have seen is the advantages of the social media are immense. And for example, if we have to communicate, of course communication nowadays is the key for success. And so for communication, the social media is a very, very, you can say, big and a very wide platform, because I mean, it's not only restricted to your own college or your own university. You can kind of interact with people from outside Delhi, in India, then of course abroad also. So in an instant, and some information you want that it has to be kind of you want to tell somebody. So in an instant it can, reach any corner of the world. So for me, I guess, even while we are teaching and we feel that if there is any information regarding any tests or assignments or anything that has to be provided to the students, very quickly we just tell the CR, and in an instant it's on the group and everybody comes to know about any changes. So it has made life easier, I feel, for us also. And regarding the negative impact, of course, if we are a little careful, I guess it's a very good tool for for everybody, I guess. Thank you. Hello friends and my well-wisher, thank you very much for the successful of this seminar on social media and its impact on our life. And I hope we will do such kind of things in future also, and definitely we love to have your full support in future endeavor. Moreover, I just have one tagline for you: not to explore each other, please empower each other. Thank you very much.